I would like to say the mission is revealing God, and mission is saying we are all brethren. We are the creation of the one Almighty God. God created man in His own image. हर इंसान के अंदर खुदा का नूर है जिसको हम आत्मा सोल कहते हैं. And mission says the entire humanity is my dear family. One word, one family. God is one. We all are the creation of same God Almighty. So we all are brethren, bridges, not the walls. Walls differentiate us. Walls separates us, whereas the bridges try to unite us. We can meet each other. We can greet each other. That tends to separate me from others. So that means no distinction. I am a human being. All you are also human being. So we are one. One we can become only by realization of God. Myself, I am not a body. I am a spiritual being. Every human being is a spiritual being. Sadhguru Mataji says, if we look towards souls behind the bodies, in every body, how beautiful the earth would look like. Again I repeat, if we look towards souls behind the bodies, in every body, how beautiful the earth would look like. We are looking to human being just different in a different way. You are Nepali, I am Hindustani, or someone in English, someone German, Japani, or someone from Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, someone is a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, but all are basically human beings. All are created by the same God Almighty. Not that everybody has its own individual God. God is one for the all. Entire universe has been created by the same one God Almighty. So we all are one, and we can become only by knowing one. That is why know one, believe in one, and then become one. एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ. ये स्लोगन संत निरंकारी मिशन का. This is the thing which unites all the human beings. And similar samagam as it is being organized here in Kathmandu. Similar samagams are being held all over the world throughout the year. Various parts of India, then various parts of world. After this, Sadhguru Mata is moving to Kuala Lumpur, Malaysia, then to Australia, New Zealand, then to UK, Europe, and North America, Canada, and USA. And similar wise, throughout the world, Sadhguru Mataji is traveling to make people reveal the God, to realize the God. So this is the mission, know God and then worship God. That is the crux of the Niranकारी mission. Niranकारी mission tends to unite the entire human race living on this earth, irrespective of any outwardly things. With these words, I think I am clear with the mission, what the mission is doing, how it is going. So thank you very much for your time being given to the Sant Niranकारी mission in holding this press conference, media meet. Thank you very much. Thank you. संस्थाले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा ल्याएर यत्रो कार्यक्रमहरू गरेकोमा हामी धेरै नै खुसी छौँ हैन, र हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौँ. जस्तै यो संस्थाका शाखाहरू कुन कुन देशमा कति छन्, एउटा क्वेसन त्यो भयो हैन. अनि त्यसपछि अनि यो कार्यक्रममा चाहिँ कहाँबाट कतिको सहभागिता हुन्छ त्यसको जानकारी दिनुभए म आभारी हुने थिएँ. धन्यवाद. क्वेश्चन वो था कि संत निरंकारी मिशन के कितने शाखाएं हैं, कितने देश में, और यहाँ समागम में कहाँ से महापुरुष आ रहे हैं और कितने महापुरुष आ रहे हैं? About 100 countries we have got mission. We don't have branches. Mission is working independently in each country with the name Universal Brotherhood, with the name Sant Niranकारी Mission, with the name Mission of Oneness. So there are different names. Mission is same. Sant Niranकारी Mission is same. Sant Niranकारी Mission is same. It's working in 100 countries all over the world. Am I clear? What else you want? क्या दूसरा क्या? और कोई प्रश्न आपका है? यहाँ पर भी मैंने बताया about
8,000 plus, 9,000 people coming from India, and few from other parts of the country also, including Nepal. All over Nepal, about 4,000-5,000 people are coming. 5,000 तक महात्मा इधर नेपाल के डिफरेंट हिस्सों में से आ रहे हैं और कुछ दूसरे कंट्री से भी आ रहे हैं. मेजर पार्ट इज फ्रॉम इंडिया, दैट इज अराउंड 9,000 प्लस. यो कार्यक्रमको लागि खर्च कति हुन्छ? हाँ जी. अनि तपाईले यो खर्चको लागि आय स्रोत चाहिँ कहाँबाट जुटाउनु भएको छ? वी डोंट गेट एनी एड. हम किसी सरकार से एक पैसा नहीं लेते. किसी भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से संत निरंकारी मिशन एक पैसा नहीं लेता. जितने भी यहाँ आए हैं फॉलोअर्स ऑफ निरंकारी मिशन, यू वुड वंडर ऑल दे आर कमिंग एट देयर ओन एक्सपेंस. मैं आया हूँ, ये जितने ही सारे आए हैं अपने खर्चे पर आए हैं. बाई एयर आए हैं, बाई बस, बाई ऑन व्हीकल्स आ रहे हैं. सभी के सभी अपने खर्चे पर आ रहे हैं और इधर आकर सेवा कर रहे हैं. ये सेवा से सारा समागम हमारा सेवा से होता है. देयर ओन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द देयर सेवा टूवर्ड्स द मिशन के जो सतगुरु के प्रति इनकी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, वो महात्मा सारे के सारे. देयर इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट जस्ट बिसाइड दिस. आप देख सकते हैं एक एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से जो कित कमाई करता है उससे अपनी कमाई से यहाँ आकर सेवा करते हैं. नो आउटसाइड हेल्प. किसी गवर्नमेंट, आप सभी जानते हैं मीडिया पर्सनल, कि कोई सरकार से हम आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई पैसा, कोई एड हमारा मिशन नहीं लेता. कोई आउटसाइड जाकर हम कोई रसीदें नहीं काटते किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरह. हमारे सब जो मिशन के फॉलोअर हैं, संत निरंकारी मिशन के जो फॉलोअर हैं, वही सेवा के रूप में जितना भी कोई देता है वो उससे सारा ये खर्चा चलता है जी. थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम इज द प्रोसीजर जी. एनी क्लैरिफिकेशन फर्दर? उद्देश्य का सर जी, इसका उद्देश्य क्या है और ये आध्यात्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक है, कौन सा प्रोग्राम है? भौतिक है, आध्यात्मिक है. दिस इज स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. संत निरंकारी मिशन इज ए स्पिरिचुअल मिशन. इट रिवील्स गॉड टू द एंटायर ह्यूमैनिटी. पूरी मानवता के अंदर ये मानव को मानव बनकर जीना सिखाता है, ब्रह्म ज्ञान देकर. ब्रह्म ज्ञान मीन्स गॉड रियलाइजेशन. परमात्मा की जानकारी देकर इंसान को इंसान बनना. अदर माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड कि कुछ भी बनो, सतगुरु माता जी का स्लोगन है, कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो. कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, मीडिया पर्सन बने, बिजनेसमैन बने और कुछ भी बन जाएं, बट अगर हम इंसान ही नहीं बने धरती पर आकर तो कोई फ़ायदा नहीं है. इंसान बताता है कि मैं, इनडायरेक्टली प्रूव करता है कि मैं इंसान हूँ, कि बिकॉज देयर इज़ नो टेल एट माई बैक, देयर आर नो हॉर्न्स ऑन माई हेड, आई डोंट हैव 4 लेग्स. मेरी 4 टांगें नहीं हैं, मेरे पीछे दुम नहीं लगी है, मेरे सिर पर सींग नहीं है, इसलिए मैं इंसान हूँ. परंतु हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि पशु पलेटे मानुष चाम, करतूत पशु की मानुष जात. लगता तो बाहर से इंसान है परंतु इंसानियत वाले गुण नहीं है. दया, करुणा, प्यार, निम्रता, सत्कार, सहनशीलता, विशालता, ये जो दैवी गुण हैं, जब तक इंसान के अंदर नहीं आते तब तक वो इंसान बन नहीं पाता. जब तक इंसान रूहान नहीं बनता तब तक वो इंसान भी नहीं बन पाता. जब तक इसको परमात्मा की जानकारी नहीं होती तब तक इंसानियत नहीं आती इंसान के अंदर. ये निरंकारी मिशन का मानना है जी. ब्रह्मा कुमारी राजयोगको र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मेरी बात सुनो ना र साई बाबाको यिनमा फरक के छ विषयमा बताइदिनु होला. र अर्को, यसैले युगौँदेखि पवित्र ग्रन्थहरूमा स्थापित पवित्र ग्रन्थहरूमा कुन पर्छन्, बाइबल, कुरान या वेद, यी सबै जोडिएर बनाइएको हो या यसको छुट्टै ग्रन्थ छ? त्यसबारेमा पनि प्रश्न बताइदिनु होला. अन्य धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जैसे रामपाल, सतपाल, पायलट बाबा, ब्रह्म कुमारी लगायत संस्थाएं हैं, तो उनमें और निरंकारी मिशन में फर्क क्या है, ये उनका प्रश्न था. और जैसे ग्रंथ हैं, जैसे
गीता, भगवत गीता हो गया और पुराण हो गए, तो ये ग्रंथों का ये मिश्रण है या ये अलग से ये खुद ग्रंथ है निरंकारी मिशन का? कुछ पूछ रहे हैं जी। हाँ जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत हमारे कोलीग ने किया है, प्रेस मीडिया पर्सनल ने। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि निरंकारी मिशन जैसे स्पिरिचुअल एक विचारधारा है, ये कोई अलग रिलीजन नहीं है। दिस इज नॉट ए सेपरेट रिलीजन। जितने मिशन का आपने नाम लिया, ट्रू, दे आर वर्किंग इन इंडिया आल्सो, दे आर वर्किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। पर हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपनी बात करते हैं कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन आध्यात्मिकता का मिशन है, स्पिरिचुअलिटी का मिशन है और गॉड रियलाइजेशन का मिशन है। हमारे मिशन का मानना है कि जब तक मैं परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं करता, तब तक मैं एक धार्मिक हो नहीं सकता। परमात्मा को जानने के बाद ही मेरे अंदर आध्यात्मिक भाव, दया, करुणा, सहनशीलता, विशालता, प्रेम, सत्कार, ये जो भावने हैं, जो डिवाइन पावर्स हैं, दैट एग्जिस्ट मी ओनली आफ्टर गॉड रियलाइजेशन। परमात्मा की जानकारी संत निरंकारी मिशन करवाता है और मिशन का दूसरे मिशन से उस रूप में कोई ना विरोधाभास है, ना कोई डिपेंडेंस है। निरंकारी मिशन इज ए इंडिपेंडेंट मिशन ऑफ गॉड रियलाइजेशन। दूसरी बात आपने पूछी धर्म ग्रंथ। निरंकारी मिशन सारे धर्म ग्रंथों को मानता है, सबका सम्मान करता है। जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर अवतार धरती पर हुए आज तक, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंदर, सभी को मानता है, सभी का सत्कार करता है, सभी का सम्मान करता है। हामीले किन भन्छौँ प्यारले भन्नुहोस् धन निरंकार? किनभने सबैजनाको प्यारले ईश्वरलाई स्वीकारौँ। ईश्वर भनेको ओम्नी प्रेजेन्ट। अघि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो मिसनले के भन्छ? गॉड इज एभ्रीवेयर, गॉड इज ओम्नी प्रेजेन्ट, गॉड इज यूनिभर्सल, गॉड इनसाइड अफ द सोल। हाम्रो आत्मा जो हो त्यो परमात्माको अंश हो। त्यो ज्ञान हामी यहाँबाट पाएँ। यहाँहरूले सोच्दै होला किन उहाँले परमात्माको ज्ञान, परमात्मा भनेको के हो? तपाईहरुलाई शंका त भएको होला नि, परमात्मा भनेको के हो? परमात्मा भनेको पशुपतिनाथको मन्दिर जाँदा पनि हामी भेट्छौँ, यहाँ पनि भेट्दैछौँ। परमात्मा एभ्रिवेयर छ, फर्मलेस छ। अनि त्यसैले हामी त्यो मानेर अहिले हिँडेका छौँ। तपाईहरुलाई लाग्यो हाम्रो सांसदजी पनि यसमा छ, सांसद भएपछि त त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो, यहाँ किन बसिया छ? हाम्रो मिडियाको क्युरियोसिटी हो। मेरो सबै भाइहरूले मलाई भन्दैछ मान्यजी त्यहाँ किन बस्नु भएन, यहाँ बस्नु भएछ। तर होइन, अल आर इक्वल हामी मानेका छौँ। यहाँ कोही ठुलो सानो छैन। उहाँहरू पाहुना भएर त्यहाँ बस्नु भएछ, म यहाँको होस्ट भएर यहाँ बसेको छु। मिडिया मेरो सबै आफ्नो परिवार हो, म यहाँ बसेको छु। र यहाँ के छ भने तपाईहरुले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने यहाँ आर्थिक कहाँबाट आउँछ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, किनभने हरेक कुरामा आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ। र यो मिसनको यति ठुलो समागम हुन्छ। म पनि लगभग 30 वर्षदेखि यो मिसनमा जोडिया छु। र जब फर्स्ट टाइम मैले दिल्लीको समागममा गएँ, त्यहाँ मैले के पाएँ भने मैले बच्चामा मेरो हजुरबाले भनेको थियो कि रामराज भन्ने कुरा थियो, मैले कहानी सुनेको थिएँ। त्यो रामराज म यो मिसनमा पाएँ। त्यो रामराज मैले यो मिसनमा पाएँ। के पाएँ भने यहाँ 1 रुपियाँ पनि हराएन कसैको, कसैले कसैलाई दुख दिन सकेन, कसैले कसैको सामान चोरेन र सबैले सबैलाई सम्मान गरेको मैले पाएँ। र यो मिसनको स्पिरिट भनेको त्यही हो। कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। म सांसद छु, यहाँहरू मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर छ, कोही डक्टर छ, तर पहिला हामीलाई इंसान बन्नु छ। मानव चोलामा जन्मे तर मानवताको कमी छ, जुन अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि हामीभित्र मानवता भएको भए हामी सबै मिलेर बस्दै मिल्न पाएको छैन। यो मिसनको एउटा मात्रै ध्येय छ, सबै मिलेर बसौँ, एकत्वलाई जानु, ईश्वरलाई पहिला जानु। ईश्वर भनेको इन्टरनलाइज गरौँ। ईश्वर भनेको मूर्तिलाई मात्रै, मूर्ति बनाउने पनि त मान्छे नै हो नि। तपाईहरुलाई थाहा छ नि मूर्ति कसले बनाएको छ? मान्छेले बनाएको छ। तर त्यसलाई हामी भगवान मान्या छौँ। फर इक्जाम्पल गरेका छौँ। जस्तै एउटा म महिला छु, मेरो सन्तान मेरो जीवबाट निस्किएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा महिलाले एउटा सन्तान उत्पादन गर्छ, तर सन्तानले आमा जन्माउन सक्दैन। जन्माउन सक्छ? सक्दैन। सन्तानलाई आमाले जन्माउँछ। त्यसकारण ईश्वरले त हामीलाई दिएछ भने ईश्वर हामी कसरी बनाउन सक्छौँ? त्यसैले म भन्छु मूर्ति भनेको फर इक्जाम्पल मात्रै हो। ईश्वर भनेको त फर्मलेस हो।
ईश्वर भनेको एभ्रिवेयर छ, युनिभर्सल छ, तीन काल सत्य छ, कहिले त्यो असत्य हुन सक्दैन। त्यसैलाई हामी मानेका छौँ र त्यही मानेर हामी हिँड्दैछौँ। हाम्रो सद्गुरु हरदेव सिंह महाराजजीले एकचोटि यस्तै मिडियावालाले उहाँलाई प्रश्न गरेका थियो कि बाबाजी, म हिन्दीमा बोल्नु नेपालीमा बोल्छु, बाबाजी तपाईँको मिसन कसरी चल्दैछ, तपाईँ के गरेर यति चलाउनु भएछ, तपाईँसँग के फ्याक्ट्री छ? उहाँले जवाब दिनुभएको थियो, मसँग एउटा मात्रै फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीबाट म मानवलाई उत्पादन गर्छु, मसँग अरू केही उत्पादन गर्ने छैन, मसँग मानव उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ जसबाट म मानवलाई उत्पादन गर्छु। र त्यही मानव उत्पादन गर्ने काममा समय समयमा यस्तो समागम हुन्छ, जुन समागम हामी कहाँ 23औं समागम हुँदैछ र हाम्रो सद्गुरुको रूपमा अहिले सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराजको छोरीको रूपमा उहाँ अहिले दीक्षित हुनुहुन्छ। उहाँको दीक्षितमा हामी दीक्षित भएर चल्दैछौँ। त्यस कारण यहाँहरू धेरै राम्रो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आर्थिक कुरामा के छ भने जस्तै म उदाहरण दिन्छु, म एउटा सांसद हुँ। कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ भने लेबी उठाउँछौँ, चन्दा उठाउँछौँ, गभर्मेन्टसँग माग्छौँ। तर यो मिसन एउटा यस्तो मिसन हो, न लेबी उठाउँछ, न चन्दा उठाउँछ, न गभर्मेन्टसँग माग्छ। कसरी हुन्छ? मिराकल छ। जस्तो मेरो श्रद्धा आफै हुन्छ, मेरो तलब कति छ त्यहाँबाट कसरी दान दिउँ। फेरि गुप्त दान म भन्दिनँ, न श्रीमानलाई सोध्छु, न छोरालाई सोध्छु, न छोरीलाई, न उहाँहरूलाई मलाई कति दिनु छ, मेरो हैसियत अनुसार म गोप्य रूपमा दान गर्छु। त्यही गोप्य दानको आधारमा यो मिसन चलिरहेको छ। हामी कहाँ अलिक कम छ यो प्र्याक्टिस, भारतमा अलिक बढी छ। यो मिसनको जब भारतको समागम हेर्छु भने हाम्रो दिमागै काम गर्दैन। कति कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कोही लेखाउँदैन कि मैले गरेको छु। तर हामी कहाँ अलि यसमा हामी कमजोर छौँ। बिस्तारै हामी पनि बन्दैछौँ, बन्नुपर्छ। अरू धेरै कुरा छन्, म यहाँहरूको मिडियामा आएर पनि म धेरै कुरा राख्न सक्छु। अब हाम्रो त सबै आफ्नै परिवारै छ, फेरि पनि प्रश्न राख्नु होला, म दिन्छु जवाब। त्यसकारण त्यही कन्ट्रिब्युसनले, त्यही अर्थको त्यही हो हाम्रो अर्थ। हाम्रो बाहिरबाट कतैबाट हुँदैन, इन्टरनल त्यो भन्छ नि गुप्त दानले यो मिसनको यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू सफल हुन्छ। अब कति अनुशासित छ हाम्रो सेवा दल कि यहाँ नेपाल सरकारको प्रहरी चाहिँदैन हामीलाई, इन्डिया सरकारको प्रहरी चाहिँदैन हामीलाई, हाम्रो आफ्नै छ, भोलिन्टियरले हामीले चलाएको छौँ। फेरि यति राम्रो चल्छ कि 1 रुपियाँ कसैको चोरी हुँदैन, कसैको केही हेरास हुँदैन, कसैलाई कोही किसिमको समस्या हुँदैन। अचम्मको मिराकल छ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, भोलि र पर्सि आएर मेरो अनुरोध छ, केही मन्त्रीज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ भोलि पर्सि, केही मान्यज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ, भिआइपीहरू पनि आउँछ। हामी कहाँ भन्दा पनि इन्डियाको कार्यक्रमहरूमा धन कत्रा भिआइपी कत्रा धनवान व्यक्तिहरू आउँछ। तर कहिलेकाहीँ मेरो मनमा पनि प्रश्न उठ्छ, यो आध्यात्मिक मिसन हो कि धार्मिक मिसन हो? यो टोटली आध्यात्मिक मिसन हो। हामी भौतिकवादमा छौँ, म बोल्नै गर्छु। यो भौतिकवादलाई सफल गर्नलाई, सस्टेनेबल गर्नलाई आध्यात्मिकवादको आवश्यकता छ। मेरो एउटा हात भौतिकवाद छ भने अर्को हात मेरो आध्यात्मिकवाद छ। यो दुइटैलाई लिएर म सफल हुन्छु। जब संविधान बनाउँदै थिएँ 64 मा हारेँ, 70 मा गएर बनाएँ, अनि म यही सद्गुरुलाई सिमरन गर्दै थिएँ र त्यो पछि बन्यो संविधान। मैले के भने मेरो गुरुको कृपाले मलाई यति बल भयो कि संविधान लेख्नमा पनि म सफल भएँ। हुनसक्छ 64 मा म हारेकोले संविधान बनेन कि? क्वेसन मेरो मनमा त्यो उब्जियो। त्यसकारण यो मिसनको स्पिरिचुअलिटीको यति पावर छ, त्यो पावरलाई बखान गर्न सक्दैनौँ। यहाँहरू सबैलाई म त्यसमा जोड्नलाई अनुरोध गर्छु। भोलि पर्सि यहाँहरू पनि यो ज्ञानमा आउनुहोस्, मेरो वेलकम छ। सधैँ तपाईँहरूसँग म साथ छु। अरू केही जिज्ञासा भयो भने पछि पनि म राखौँ, आज धेरै टाइम नलिउँ। धन्यवाद। आई एम सञ्जीव घिमिरे, सेक्रेटरी अफ फेडरेसन अफ नेपाली जर्नलिस्ट भक्तपुर च्याप्टर। वी आर भेरी ग्ल्याड टु सी दिस स्पिरिचुअल program in Bhaktapur. From the journalists, we would like to welcome you all, especially Sadhguru Mata Sudichaji Maharaj, you and all the participants in Bhaktapur. And my question is, what is the main quality and main power of Sadhguru Mata Sudichaji Maharaj? Because of that quality, all the people, thousands of people are gathering here. And what will you do here to connect them? And what is the main activity that will be happen here? Thank you. हमारे अवतार वाणी में एक दो पंक्तियाँ आती हैं, सद्गुरु आता दुनिया ऊपर सारे ही संसार के लिए, सद्गुरु आता दुनिया ऊपर केवल परोपकार के लिए, सद्गुरु आता दुनिया ऊपर एके के प्रचार लिए। तो हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो आप जी पूछ रहे हैं, अभी महापुरुषों ने बहुत विस्तार से आप जी को बताया कि सीधा ब्रह्म की एक प्राप्ति करवाते हैं, ईश्वर के साथ नाता जोड़ते हैं। अभी जैसे आज आप हम मिले हैं,
तो पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारा आपका भी एक इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब हम कह सकते हैं कि हम नेपाल के कुछ पत्रकारों को हम जानते हैं। आप भी शायद अगर याद रखेंगे तो हमारे विनोद बोरा जी, बस इतनी ही देर लगती है परमात्मा की जानकारी में, ना कोई क्रियाओं से जोड़ता है, ना किसी प्रकार के और कोई ऐसे कर्मों से जोड़ता है। सीधा हमारा एक रिश्ता परमात्मा के साथ, कोई इसको गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। कि बख्तापुर में निरंकारी मिशन का समागम जो है 23वां, वो 16 और 17 मार्च इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा है कि 16 और 17 मार्च इसी महीने में आ रहे 2 दिन में, कल और परसों होने जा रहा है। ये तो हो गई जानकारी, मान भी लिया आपने होने जा रहा है, देख भी लिया। अब बख्तापुर पहुंचना है। आप बख्तापुर में बैठे हैं, इस समय बैठे हैं ना सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको कोई बताए कि बख्तापुर पहुंचने के बहुत तरीके हैं।